Good morning, dear students. How are you all? So, I hope, students, you are good and your family is also fine. So, students, this is a video, offline video on YouTube. I'm not taking live classes because I have found that very few students attend live class, and one problem is that you cannot revise live class. Okay, so the benefit of YouTube video is once it is made, you can watch this video one time, two time, three time, or as many times as you want. So let's start today's class. Today I'm going to revise chapter number 1 from geography, class 8 geography, and the name of the chapter is resources. Okay, the name of the chapter is resources. So shall we begin? Let's start. So introduction. We are able to use different items such as utensils, electricity, clothes, furniture, etc. since they have different usability. When any object or thing takes the form of usable resource, it becomes usability or utility. Use of any object represents its value. Every resource is valuable in its own sense. Okay, so here it is saying बच्चों जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स हो यूटेंसिल मीन्स बर्तन हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्लोथ्स फर्नीचर्स एक्सेट्रा तो वो हमारे काम आता है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इट्स यूजेबल आइटम वो हमारे यूजेबिलिटी में होता है एंड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग यूजेबिलिटी होती है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे बिकेम रिसोर्स वो एक रिसोर्स बन जाता है हमारे लिए. The meaning of value is worth. The importance of resource lies on its economic value. For example, metals have higher economic value than that of landscapes. Both of these examples of resource are capable of satisfying the needs of human beings. So value का मतलब होता है कीमत, उसकी worth क्या है and importance of resource lies in its economical value. कोई भी रिसोर्स कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल मेटल मेटल मतलब आयरन आयरन हो गया कॉपर गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा दीज मेटल्स आर वेरी वैल्यूबल ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं कीमती होते हैं बिकॉज इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. दे आर मोर वैल्यूबल देन लैंडस्केप सीनरी से ज़्यादा वैल्यूबल कोई लैंडस्केप जैसे कि माउंटेन्स और इससे ज़्यादा वैल्यूबल मेटल्स होते हैं बट दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है हमें दोनों की ज़रूरत होती है. The economic value of some resources changes with time. For example, the herbs that our grandmothers suggested for certain illness may have no commercial value in today's time. However, if you get these remedies and herb patented using certain procedures and sell it with the help of medical firm, the economic value of those remedies and herbs would increase directly. So, जो डिफरेंट रिसोर्सेज होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू समय के साथ कम होती है या ज़्यादा होती है. सो जैसे कि पहले के समय में हमारी मदर्स जो होती थी ग्रैंड मदर्स होती थी वो हमें काढ़ा वगैरह बना के देते थे जो उस समय बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल था बट आज की डेट में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कफ सिरप एंड ऑल है. फिर भी अगर हम ऐसी रेमेडीज़ ऐसी रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जैसे कि काढ़ा वगैरह है तो हम उसको पेटेंट करा सकते हैं उसका एक केमिक उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेच सकते हैं जिससे कि हमें दोबारा से इस प्रोडक्ट की वैल्यू मिलने लगे. सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज. किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए क्या फैक्टर्स हैं. दे आर टू फैक्टर्स टाइम एंड टेक्नोलॉजी. समय के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोई भी चीज़ जो कि यूज़लेस थी कुछ समय पहले अब वो यूज़फुल हो जाती है समय के साथ. There are two factors that are responsible for changing substances into resources. These are time and technology. Both are important for completing the needs of people. Even we, people, are important resource. The creation of new resources have taken place only because of ideas, discoveries, knowledge, and invention carried on by people of different niches. So समय के साथ साथ काफ़ी सारी रिसोर्सेज बनती हैं इनफैक्ट हम ह्यूमंस भी एक रिसोर्स ही हैं वी आर ह्यूमन रिसोर्स वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड एज पर टाइम एंड टेक्नोलॉजी.
सो इवन पीपल आर इम्पोर्टेंट रिसोर्स एंड वी मेक न्यू डिस्कवरीज, हम नए नए डिस्कवरीज करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं जो कि एक नया रिसोर्सेज होता है. फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज लाइफ मोबाइल इज़ द बिगेस्ट रिसोर्स. ओके. Once fire was discovered, it led to the people learning how to cook as well. Similarly, as the wheel was discovered, different modes of transport were discovered. As the creation of hydroelectricity with the help of technology was introduced, the fast flowing water has been identified as important resource. तो अलग अलग समय में हमें अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है. जैसे कि सबसे पहले जब फायर के बारे में हमें पता चला कि फायर एक रिसोर्स है, तो उससे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, उस पर हमने खाना बनाना सीखा और भी बहुत चीज़ें. इसी तरह से जब हमें व्हील के बारे में पता चला, तो व्हील से अपने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाए. और जब हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स डैम से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ये पता चला कि बहते हुए पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. लेकिन पहले उस पानी की उतनी वैल्यू नहीं थी, उस पानी को कोई यूज़ नहीं करता था. बट नाउ एज टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड, हमें उस पानी का यूज़ पता चल गया. सो रिसोर्सेज कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. रिसोर्सेज को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स मीन्स जो कुदरत ही हमें देती है. ह्यूमन मेड रिसोर्स जो हम ह्यूमंस बनाते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हम खुद, हम ह्यूमंस भी तो एक रिसोर्स है ना. अब मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी भी तो आपको ज़रूरत है ना. आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ रिसोर्स फॉर यू. So we classify the resources in the following basis: natural resource, human made resource and human resource. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what are natural resources. Those resources which can easily draw from nature and can use them directly without any further modification are known as natural resources. ऐसी चीज़ें जो कि हम नेचर से सीधा इस्तेमाल कर सके बिना किसी मॉडिफिकेशन के, that are natural resources. The water found in lakes, rivers and air around us for breathing, minerals of different types of soils, or example of natural resources that are present around us. We use all such resources directly. These are free gifts from nature. तो बेटा कुदरत ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, जैसे लेक्स दिया है, रिवर्स दिया है, माउंटेन्स दिया है, एयर दी है जिससे हम सांस लेते हैं, हम मिनरल्स निकालते हैं, हम सॉइल यूज़ करते हैं. सो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज के. एंड वी आर यूजिंग इट डायरेक्टली. दे आर गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर. कुदरत की तरफ से ये हमारे लिए तोहफा है. आप देख सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल: water found in lakes and rivers, air we use for breathing, minerals of different types, and soils. Further, the natural resources are classified into renewable and non-renewable resources. Natural resources को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: renewable and non-renewable. Renewable और non-renewable sources में, those resources which are capable of getting replenished or renewed quickly are known as renewable sources. For example, wind and solar energy are examples of such resources. कुदरत ने हमें ऐसी चीज़ दी है जो कि कभी ख़त्म ना हो और जो कि अपने आप को बहुत ही चीज़ें से बना सके. दैट आर नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. पानी, क्योंकि वो अपने आप को बना सकता है फिर से और वो कभी ख़त्म नहीं होगा. Few of such resources are present in unlimited amounts, and any human activity can have no severe impact on such resources. If you continue to use renewable sources such as soil, water, forest in a careless manner, their stock would be affected in severe manner. तो बच्चों, बहुत सी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सन की रोशनी हो गई, विंड हो गई, उसको हम चाहे जितना इस्तेमाल करें हमारे नेचर पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. बट कुछ ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जैसे सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाटर है, हम केयरलेसली इनका इस्तेमाल करने लगे, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है. Although water is considered as a resource which is available in unlimited amounts, however, since they are drying up in higher amounts and shortage of water has resulted in many regions across the world facing severe related issue. पानी हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा हमारे अर्थ में पानी है, बट स्टिल वी हैव टू सेव वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है, जो पीने के लिए अच्छा होता है, इट्स गेटिंग लेस डे बाय डे. वो समय समय पे बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग इट. ओके.
बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है. पीपल आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स ओनली. वो टैंकर्स का इंतज़ार करते हैं पानी के लिए. हमें पानी को बचाना है, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेस इन फ्यूचर. Those resources whose stock is available in limited amounts in different parts of the world are non-renewable resources. If any of these resources get exhausted, it will take thousands of years for them to get replenished or renewed again. बहुत सी ऐसी सोर्सेस हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट में है दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में. अगर हम उनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी और उसको दोबारा बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे. As this time the period is more than that of the lives of humans, these resources are called non-renewable resources. For example, the resources such as petroleum, coal and natural gas. इस समय हम बहुत से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल है, कोल है और नेचुरल गैस है. ओके. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल के एग्जांपल है विंड एंड सोलर एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल है कोल एंड नेचुरल gases. How these two natural resources are distributed depends on several physical factors such as altitude, terrain, and climate. These natural resources have unequal distribution because our Earth consists of physical factors of different types. बेटा जो दो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, वो डिस्ट्रीब्यूट है अर्थ के अलग अलग प्लेसेस में है. अलग अलग फैक्टर्स उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि हमें पेट्रोल हर जगह नहीं मिलता, हमें आयरन हर जगह नहीं मिलता, हमें गोल्ड हर जगह नहीं मिलता. वो डिपेंड करता है वो किस ऊंचाई पे है, वो कैसे जगह पे है, वो कैसे क्लाइमेट में है. ओके. क्योंकि अर्थ का जो है वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म है. अर्थ में कहीं माउंटेन्स है, अर्थ में कहीं फर्टाइल सॉइल है, अर्थ में कहीं रेड सॉइल है. ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज के लिए. Now let's see what are human made resources. Human made resources means resources which we are made, जो हमने बनाई है resources. Sometimes different natural resources take form of resource only when their original form is changed by humans. Earlier people didn't consider iron ore a resource until they learned the method of extracting iron from this ore. Natural resources are useful in constructing various things such as vehicles, roads, bridges, buildings, and machinery, which are considered human made resource. Technology is another important example of human made resource. ऐसी चीज़ें जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई उन्हें हम human made resource कहते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्स ही थे जिसको कि हम पहले उसका यूज़ करना नहीं जानते थे, लेकिन आगे चल के हमें उसको यूज़ करना आया. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आयरन ओर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था. है तो वो नेचुरल है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम उसमें से आयरन कैसे निकालें. लेकिन बाद में हमने उससे आयरन एक्सट्रैक्शन करना सीखा और उसकी मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं. आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग व्हीकल्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. दीज आर मैन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी भी एक एग्जाम्पल है मैन मेड रिसोर्सेज का. रोड्स हो गए, कार्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, दीज ऑल आर रिसोर्सेज ऑफ मैन मेड. नेक्स्ट कम ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हम खुद, वी आर itself is an example of resource. As people gain skills, knowledge and technical advancement, they start making good use of nature so that more resources could be created. This is the reason why humans are also considered as a significant resource. With the help of education and health, people are transformed into valuable resources. The improvement of different skills in order to create more resource is known as human resource development. ओके. हम भी एक रिसोर्स हैं. देखो बेटा, हर इंसान इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं होता. कुछ लोगों के पास ज़्यादा स्किल्स होती है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं कंपेयर टू अदर पीपल. दैट्स वाई हमें नॉलेज सीखनी है, हमें स्किल्स सीखनी है, सो दैट हम एक प्रोडक्टिव इंसान हो सके, हम एक यूज़फुल इंसान ना हो सके. बहुत से लोग होते हैं ना, कहते कि तुम बेटा तुम तो एकदम मतलब यू आर यूज़लेस. ऐसा कोई हमें ना कहे. दैट्स वाई हमें अपने आप को रिसोर्सफुल बनाना होगा, हमें नई नई चीज़ें सीखनी होगी. वी हैव टू कीप आवर सेल्फ एजुकेटेड. हमें अपने आप को हेल्दी रखना होगा ताकि हम खुद एक रिसोर्स बन सकें. ओके. और एक ब्रांच है जो कि हमारे रिसोर्स को अच्छा करने की मदद करती है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, HRD. HRD मिनिस्ट्री के अंडर ही बेटा हमारा एजुकेशन भी आता है. एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट.
नेक्स्ट थिंग इज़ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बेटा जैसा कि आपको पता है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, ज़्यादा यूज़ करने से वो ख़त्म भी हो सकती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व आर रिसोर्सेज, हमें उन्हें बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम सो दैट दे रिप्लेनिश और renew, इट्स कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो बच्चों जैसे कि रिसोर्स लिमिटेड टाइम में अगर हम उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, पेट्रोल को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ देम इन लिमिटेड अमाउंट इन अ स्लो स्पीड। हमें उन्हें धीरे धीरे करना है ताकि जब तक हम जितना कंज्यूम करें उतना वो वापस से बन जाए। Conserving the resources for future usage and balancing their need at the same time is known as sustainable development. आगे की जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को बचा के रखें और इतना यूज़ करें जितने में वो दोबारा से बन जाए इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Resources can be conserved in different ways. A person can contribute by reducing, recycling, and reusing the goods, since the life of every human being is linked with each other, making a difference with different ultimately manners. So हमें क्या करना है, हम रिसोर्सेज को बचाने के लिए 3 R's का यूज़ कर सकते हैं, विच आर रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। हम चीज़ों को कम इस्तेमाल करने लगे, जैसे बहुत से लोग होते हैं, समटाइम्स आई ऑल्सो, कम दूरी के लिए भी जाना है तो भी वो बाइक और कार को निकाल लेते हैं, वो चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। अकेले एक बंदा जा रहा है लेकिन वो फिर भी बड़ी सी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में जाता है। क्यों जाता है? एक बंदा है तो वो बाइक से भी तो जा सकता है या छोटी कार से जाए। तो वी हैव टू रिड्यूस, रीयूज़ करना है। हम लोग चाहे बार दुकान जाते हैं उतनी बार हम कहते भैया प्लास्टिक दो, दूसरी पन्नी दो, भैया पेपर दो। हम एक ही चीज़ को बार बार भी तो यूज़ कर सकते हैं। 1 प्लास्टिक बैग कैन बी यूज आई थिंक मोर देन 50 टाइम्स। और लास्ट है, हमें रिसाइकिल करना चाहिए। हम कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, बॉटल पानी पिया खिड़की से बाहर फेंका, बट अगर हम उसे डस्टबिन में फेंकें तो वो रिसाइकिल होकर हमें वापस से यूज़ करने के लायक हो सकता है। The future of our Mother Earth and its habitat depends on our ability to maintain it. It is the duty of every person to ensure that बेटा हमारे अर्थ का जो फ्यूचर है वो हम ही पे डिपेंड करता है। अगर हम अर्थ को अच्छे से नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो आने वाली जनरेशन हमें बहुत ही ज़्यादा हम पे गुस्सा होगी। वो कहेगी हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं अर्थ में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सस्टेनेबल मैनर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज़ करना है ताकि उसे दोबारा बनने का हम समय दे सकें। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड। अर्थ में जो भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोगों के कल्चर, उन्हें हमें प्रिजर्व करना है। डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट इज, हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें जंगलों के साथ नहीं खेलना, हमें एनिमल्स के साथ नहीं खेलना। हियर आर सम इजी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। मेक शॉपिंग बैग्स विद ओल्ड न्यूज़पेपर डिस्कार्डेड क्लोथ्स। हमें पुराने कपड़े से शॉपिंग बैग बनाना चाहिए, हर बार भैया से नहीं कहना चाहिए भैया पन्नी दो। Make baskets with bamboo sticks. We have to make baskets with bamboo sticks which of electricity when not in use. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। लोग इतने लेजी होते हैं कि पंखे और कूलर एसी चल रही होती है, घर चले जाते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं विदाउट क्लोजिंग इट। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर बाय चेकिंग लीकेज ऑफ क्लोजिंग टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़। बहुत से लोग पानी का टैप्स ढंग से नहीं बंद करते। कितने लोगों के घरों में पानी छूता होता है फिर भी उसे वो रिपेयर नहीं कराते, बिकॉज दे थिंक अरे पानी ही तो है ना, फ्री का है, पेट्रोल थोड़ी ना है। रीयूज़ ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। हमें वाटर को रीयूज़ करना है। अब मान लो कि अगर इफ़ यू आर टेकिंग बाथ ऑफ वाटर, जापान में क्या होता है बेटा, फ्लश के ऊपर बेसिन होती है और जब अपना हाथ आप धुलते हो तो वो फ्लश में जाता है जिसको आप टॉयलेट में यूज़ कर सकते हो दोबारा से। तो दिस इज़ व्हाट सस्टेनेबल एनर्जी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें हम सबको एक साथ नेचर के साथ मिलके अपनी अर्थ को बचाना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आया, एंड कमेंट योर नेम फॉर मार्किंग अटेंडेंस। आप इसको वीडियो को यूट्यूब में खोलो और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना नाम एंटर करो फॉर अटेंडेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।